So this question we have already seen. This one also. Here is one question, very small question. This is not in the word. It is already formulated. So it will be much easier to solve. So I think you have your notebook and pen with you. If it is not there, get it and try to solve along with me. Because just by get it. Just by seeing this, I am solving, you will not be able to get it. Okay. आप ही देखोगे फिर थोड़ा देर बाद भूल जाओगे. Better is to have your notebook and pen. So this one is very simple question. So first of all, what is the method? What we do, whatever inequalities are there, whatever constraints are there, that is reduced into equation form. X is equal to 3. These are the two equations. Then what we do, we try to make it make the right side of equation 1. So this can be written as x by 1 minus y by 2 is equal to 1. And this is simple, x is equal to 3. So there is no need of reducing this one. Let us draw these lines here. So we just draw it. This one is x and here is y. This is origin. Now here you look at this one, x. So you have to select 1 at x. So if it is 1, 2, 3, 4. So this is first point. And it is by, we have to take 2. So on by, yes, correct. That's what I wanted to see, that you are able to catch it or not. हाँ, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन फॉर्म है ना, इसको आपको रिड्यूस करना है प्लस बाई डिवाइडेड बाई -2, राइट. सो यहाँ पे प्लस होगा तभी आपको जो है इस ये वाला मेथड यूज करना है. तो आपको किसी भी तरह से ये प्लस लाना है, ठीक है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाओगे. आपने यहाँ पे 2 ले लिया तो वो लाइन रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है टू जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट sometimes the equation will have minus sign. So when the minus sign is there, then you have to take care of this one. Clear? So you have to take -2 on y-axis. So this is the point. So now we will draw the straight line connecting this, and because first quadrant, so we will extend it in first quadrant. We don't need this part, right? We only need the first quadrant part. Okay, so this equation is done. X is equal to 3. How do you draw x is equal to 3? So x is equal to 3 is this one. Only x is equal to 3 is there. That means obviously it will be a vertical line. X is equal to 3. This is x is equal to 3 line. X is equal to 2 line means there will be a vertical line here. Okay, so these 2 lines are there. Now it is told, now we will show the inequality. So 2x minus y is less than 2. Less than 2. Which side? This side or this side? आपको किस साइड में लेस देन 2 मिलेगा? टुवर्ड्स ओरिजिन. ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है
इफ यू फील दैट वी डोंट नो कि ओरिजिन साइड में होगा या ओरिजिन से अवे होगा, तो हाउ टू चेक? So what you have to do is, you have to see it is written less than 2. Less than 2 means you can take any value less than 2. Let's suppose I have taken 1, and let me check that this line falls which side of this original line. अगर ये इस साइड में आया मतलब आपको साइड का रीजन सेलेक्ट करना होगा। अगर ये लाइन इस साइड में आया तो आपको इस साइड का रीजन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हाउ टू चेक, यू अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज रिटन लेस देन 2, so you have to take any number less than 1, less than 2, and draw the line. So this will be x divided by 1 by 2 and plus y divided by minus 1 is equal to 1। तो किधर होगा आप देखो, x 1 by 2 means this is point, and y minus 1, that means this one, minus 1 is this one, that means the line is falling this side, clear? That means the region which you have to select is this region। समझ में आ गया कैसे पता करेंगे कि हम, ठीक है? We have to highlight this region, means we have to select this region। ओके, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है x इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 आपको पता है ना? लेस देन 3 मतलब ऑब्वियसली इस साइड ही होगा। ओके, नाउ टेल मी विच इज द कॉमन रीजन। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ x एंड y ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, x greater than 0 means this side, all this region will be x greater than 0, and y greater than 0 means side। अब आप बताओ कि कौन सा है रीजन जो कि कॉमन रीजन है? तो ऑब्वियसली द कॉमन रीजन इज दिस पार्ट, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस साइड। मतलब आपका ये जो कंप्लीट रीजन होगा दैट इज द फीजिबल रीजन। इसको क्या बोलेंगे? फीजिबल रीजन। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, क्या है? ओके, ओके, सो हाँ करेक्ट, ये रीजन इस तरफ जा रहा है और ये खत्म नहीं हो रहा है। ये इसको कहते हैं अनबाउंडेड रीजन, इसका कोई बाउंडेशन, अनबाउंडेड रीजन। और ये फिजिबल रीजन है तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो इसको बोलते हैं बिकॉज इसका ये कोई बाउंडेशन, मैंने अभी तक जो भी दो प्रॉब्लम किया उसमें क्या था, देयर वाज ए रीजन व्हिच वाज बाउंडेड बाय, इट वाज हैविंग ऑल द बाउंड्रीज, बट लुक एट हियर देयर इज नो बाउंड्री यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो हो सकता है कि आपको ये इसका तो कोई बाउंड्री है नहीं, तो इसका वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे एक्स एंड वाई का वैल्यू? एक्स एंड वाई क्योंकि ये रीजन कहीं इंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है। वाई विल बी इनफाइनाइट एंड एक्स विल बी समथिंग, लेट सपोज एक्स मैक्सिमम आप 3 ले सकते हो, है ना? तो एक्स मैक्सिमम 3 और वाई इनफाइनाइट आप ले सकते हो, तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा? तो ये एक इशू हो गया, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिया है बिकॉज दिस इज हैविंग ए अनबाउंडेड रीजन। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है? सो सी है, अब देखो ये बाई जो है यहाँ पे जेड में, ये क्या है? निगेटिव में है, 6x माइनस 2y। आप बाई का वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? जेड का वैल्यू इंक्रीज करेगा।
इंक्रीज करेगा। इफ y इंक्रीजेज देन z, यस, तो z विल डिक्रीज। तो यही एक आपको यहाँ पे आपको पकड़ना है कि अनबाउंडेड रीजन है बट y का वैल्यू आप इनफाइनाइट नहीं ले सकते। यू नो, आर यू गेटिंग और नॉट? अब y को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे क्या हो रहा है, z विल डिक्रीज, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपको मिलना नहीं है। क्लियर? तो इसलिए इसका चिंता ही नहीं है, देयर इज नो वरी अबाउट कि ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है, इससे कोई मतलब नहीं। वाई? बिकॉज बाई बी बाई द वैल्यू ऑफ बाई इज नॉट गोइंग टू बी मोर देन, मतलब आपको बाई जितना कम हो उतना बेटर। क्लियर ना? इफ इट इज लेसर दैट इज बेटर, so we need not to worry about कि y is going to be infinite। इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू इधर ही कहीं पे मिलने वाला है, ठीक है, मिनिमम, क्योंकि y आप निगेटिव नहीं ले सकते, मतलब जीरो से ऊपर लेना है, जीरो से ऊपर लेना है तो कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो आपके पास, अब आप चेक करिए कॉर्नर पॉइंट्स कितने सारे हैं, 3 पॉइंट्स। हाँ, ओके, भाई अगर आपने 0 ले लिया तो x कितना लोगे, 1 लेना होगा ना, या तो 0 लोगे या 1 लोगे, ठीक है, उससे उसके अलावा तो आप नहीं ले सकते कुछ भी, because this is the bounded this is the region, isn't it? So if you take 1 and by 0 then it will be z is equal to 6। so क्या इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है? ये पॉइंट कौन सा है बताओ, व्हाट इज दिस पॉइंट? ओके, दिस इज 1 0, दिस इज 0 0, and what is this point? C O A B। what is this point? Find out that 2x minus y is equal to, okay, 3 comma 4। so put it there, how much is z coming? Z at point B, so z at point B is equal to 10, this is the maximum value, करेक्ट? समझ में आ गया? तो y इनफाइनाइट अगर आप नहीं ले सकते, y आपको देखो 4 ही लेना पड़ेगा, 4 से ज्यादा आप लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5 लेट्स सपोज, बट x इज हाउ मच, 3 ओनली, मैक्सिमम 3 आप x ले सकते हो। तो जैसे ही आपने 3 रखा, यहाँ पे 5 रखा, क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 8 हो जाएगा, विच इज लेस देन 10। अगर आपने 6 रखा तो क्या होगा, और भी कम होता जाएगा, ठीक है। सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। क्लियर? चलो अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लाइन है उससे सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस विथ ऑब्जेक्टिव लाइन। सो लेट अस ड्रॉ दिस लाइन, -2 by is equal to let's suppose take it as 6, then x by 1 and plus y by -3 is equal to 1। so x is equal to 1 and y is equal to -3 is going to be here। that means the line which we are going to draw will be something like this। clear? now you look at this blue color line। so let's suppose you take 6x -2y is equal to 0। तो ये लाइन कहाँ पे होगा, somewhere here it will be, but parallel to this, उधर भाग गया, it will be passing to origin, through origin, but parallel to this blue color line। clear? तो 0 है तो यहाँ पे है, 6 है तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको मैक्सिमम किस साइड मिलने वाला है,
लाइन को इस तरफ शिफ्ट करोगे तब मैक्सिमम मिलने वाला है, या इस तरफ शिफ्ट करोगे तब मिलने वाला है? अवे फ्रॉम ओरिजिन और टुवर्ड्स ओरिजिन, विच साइड वी हैव टू शिफ्ट द ऑब्जेक्टिव लाइन? We have to shift it away from origin. Yes, because what is this line? 6x minus 2y is equal to 0, and this is 6x minus 2y to 6. That means if you are going away from origin, then you are getting higher value. So अब आप इसको शिफ्ट करोगे away from origin, so कहाँ पे आपको maximum value मिलने वाला है, and which is going to touch the feasible region at a single point. So obviously you are going to get at B point, क्योंकि यहाँ पर तो आपको मिलने वाला नहीं है. Clear? At A is equal to 1 0, you are not going to get maximum. You are going to get maximum at B 3 4. So this is how we can solve this problem with the graphical method also, and with our analytical method. So this is analytical method and this is graphical method. So both तरीके से आप solve कर सकते हो. समझ में आया कि अनबाउंडेड फिजिकल रीजन होगा तो उससे घबराना नहीं है. हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अनबाउंडेड रीजन द जेड वैल्यू इज डिक्रीजिंग, as y is increasing, z is decreasing. So we need not to worry about कि y is going to be infinite. तो उससे कोई मतलब ही नहीं है. Clear? So what you have to do, you have to check. Better is to try to check through this line itself. आप जो ऑब्जेक्टिव लाइन आप ड्रॉ करके देख लो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू किस साइड में मिल रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, एंड इज दिस पासिंग थ्रू द फिजिकल रीजन और नॉट. तो आपको आसानी से पता चल जाएगा. ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में खुद वैल्यू पुट करके देख लेना है. ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ वाई जेड इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. अगर ये प्लस साइन होता ना, इफ दिस ऑब्जेक्टिव साइन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैड प्लस साइन, तब सिनेरियो कुछ और ही होता. क्यों? Because y can extend up to infinity and x can be maximum how much? X can be up to 3. So चलो x 3 रख दिया, y तो आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, तो उससे z इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. There is no limitation. So you are not going to get maximum of z. Maximum of z कहाँ पे हो जाएगा? अगर ये प्लस होता तो it will be, you will be getting maximum at infinity. समझ में आया? तो वैसा भी सिचुएशन हो सकता है. क्वेश्चन को ऐसा भी चेंज करके दिया जा सकता है. एग्जाम में बोल देगा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x प्लस 2y एंड फाइंड आउट. तो आपको पता चला कि आप सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड कर पा रहे हो. सो देयर यू हैव टू राइट कि द मैक्सिमम वैल्यू विल लाई ऑन एट इन्फिनाइट. मैक्सिमम ऑफ जेड will be obtained in that case at infinity. ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन. क्लियर? लेकिन अभी तो आपको सॉल्यूशन मिल चुका है. Okay, so next problem, let us move towards the next problem. I'll delete it all. I'll share the video if you want. जो लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो से देख लेंगे, अभी क्लास अटेंड करने का जरूरत है. एक्चुअली लाइव क्लास का कुछ अलग ही मजा होता है. बिकॉज मैं जानता हूँ कितने लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं. दे डोंट हैव टाइम एक्चुअली. सो दैट्स व्हाई इन लाइव क्लासेस व्हाटएवर यू वांट टू लर्न इट. अगर आपको कुछ कहीं पर डाउट होता है तब आप रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस वन. तो इसको मैं बहुत तेजी से सॉल्व करने वाला हूँ. आपको पता है ऑलरेडी मैंने 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैंने कर लिया है. सो 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, एक्स एंड वाई. ए कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स. सो लेट्स ड्रॉ टेबल. 2 products x and y. This is x for capital X and this is y. These are the products.
The profit contribution of X and Y are 3 and 4. X का प्रॉफिट लेट्स सपोज इस तरफ हम लिख लेते हैं प्रॉफिट. अच्छा, हाउ मेनी वेरिएबल्स? 4 आते हैं ना. 1 2 4. One more is required. A, B, C, and D. So profit is 3 and 4. Rupees 3. What is the meaning of this sign? Means per unit, isn't it? Okay. The product and X and Y requires the services of 4 facilities. The capacities of 4 facilities A, B, C are limited, and the available capacity in hours are 200, 150, 100 and 80 respectively. Means capacity of A, B, C and D are how much? 200, 150 hours, 100 hours and 80 hours. So these are the constraints. इससे आपको आगे जाना नहीं है, तो ये लिमिटेशन हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया. प्रोडक्ट X requires 5358 hours of facility. 5358. Product Y requires 4554. 4554. Okay, our table is ready. What we have to maximize the profit. So let us consider X units of product X and Y units of product Y. So X unit of X and Y units. So total profit 3 into X and 4 into Y, and this is to be maximized. So that will be, so the question is maximize Z is equal to 3X plus 4Y subjected to what? So limitations, constraints, 200 maximum. So 5X plus 4Y will be greater than, less than. Okay, it should be less than 200. मतलब 200 से ऊपर नहीं जाना है. 3X plus 5Y will be less than 150. 5X plus 5Y is how much? Less than 100. 8X plus 4Y is less than 80. So first what we have to do, okay, one more thing, X and Y greater than 0, ये भूलना नहीं. Okay, so first what we have to do, we have to reduce it in equation form. और मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, RHS को 1 करने वाला हूँ. So 200 will go this side. So X by how much? 40. Y by 50 to 1. Second line is X by 50 and Y divided by 30 is equal to 1. Here X by 20 and Y by 20 is equal to 1. And here X by 10 and Y by 20 is equal to 1. So all the 4 equations are ready now. So we are going to draw that. Maximum how many? 50, no? So this is origin 10, 20, 30, 40, 50. This is X. This is Y. 10. Okay. First line X 40 by 50. 40, 50. Draw that. Second line. Okay. Write the names. What is the name? 5X plus 4y is equal to 200. Second line
50 and 30. X is equal to 50 and 30. And 20, 20. Fourth one, 10, 20. X is equal to 10 and Y is equal to 20. Okay, all the lines are ready now. We need to write the names of each line. So this line is how much? 3x plus 5y is equal to 150. This line is 5x plus 5y is equal to 100. And what is this line? This is 8x plus 4y is equal to 8. We need not be confused. Okay. Now we need to see the inequalities. Less than 200. मतलब इस लाइन का टुवर्ड्स ओरिजिन होगा लेस देन 200. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो और ऑब्वियसली एवरी टाइम इट विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन. इसमें भी टुवर्ड्स ओरिजिन होना है, यहाँ पे भी टुवर्ड्स ओरिजिन, यहाँ पे भी टुवर्ड्स ओरिजिन. ओके, नाउ विच इज द कॉमन पॉइंट? ओके, x एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज y greater than 0 and this is x greater than 0. Which is the common region? Yes, correct. Our common region is this one, surrounded by this point and this point. Clear? So we got the common region. So can we find out the values and maximum value? It was much easier, isn't it? So just make the table here, x, y and z. x is equal to first point is 0, इसको आप point A कर दो 10, 0 and इसको point B कर दो 0, 20. Okay, so first 0, 0, obviously z will be 0. Point A में है 10, 0, is that 10, 0, 30 and B 0, 20, you will be getting 80. So this is the maximum value. Clear? So at this point you are going to get maximum value. लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, see all these three lines, एक ये लाइन, एक ये और एक ये, वो क्या रहा है? तो ये तीन लाइन क्या हो रहा है कि ये आपके सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है. क्यों? क्योंकि आपका फिजिबल रीजन क्या है? फिजिबल रीजन इज दिस वन and these lines are outside the feasible region. Clear? These lines are outside, they are not anything into the feasible region. So these lines are known as redundant equations, or these equations are known as redundant equations. तो ये जो थ्री equations आपको दिख रहा है, these are redundant equations. So यहाँ पे हम लिख दे रहा redundant equations. तो ये कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्वेशन, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग if the lines representing some equations does not fall under or lie inside, or do not lie inside the feasible region,
then the equations are known as redundant equations. They are not contributing at all in the solution. और इसलिए अगर आप इसको थोड़ा बहुत चेंज भी करते हो तो इससे सॉल्यूशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है till these lines don't fall inside the feasible region. एक बार ये feasible region में चला आया ना उसके बाद फिर ये आपके आंसर्स को अफेक्ट कर सकता है क्लियर बट till the time it is out of the feasible region it is not going to affect your solution. मतलब आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज है ये चेंज हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टिल द टाइम इट इज नॉट इट इज आउटसाइड द फिजिकल ठीक है तो समझ में आ गया रिडंडेंट इक्वेशन तो इससे पहले वाला एग्जांपल हमने देखा वहां पे अनबाउंडेड रीजन्स के बारे में हम लोगों ने देखा फिर रिडंडेंट इक्वेशंस के बारे में देखा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा हाँ सम एक्सेप्शनल केसेस सी अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं अभी आपको देखने को एक्सेप्शंस मिलेगा पहला एक्सेप्शन है अल्टरनेटिव ऑप्टिमा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्टरनेटिव ऑप्टिमा मींस अभी तक हमें क्या मिला था वी वर गेटिंग सॉल्यूशन एट वन सिंगल पॉइंट अब ऐसा होगा कि आपके बाउंड्री के अंदर ठीक है जो फिजिबल रीजन है उसमें 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए ऐसा भी हो सकता है हाँ करेक्ट तो वैसा हो सकता है कि 2 पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए यहाँ पे भी कुछ जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये दोनों सेम हो जाएगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू ही सेम हो जाएगा ऐसा हो सकता है जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे maximize z is equal to this subjected to this so let me draw that okay so इसको x और y कर लो आसान होगा x plus 2y is equal to 5 अगर आप इसको रिड्यूस करोगे तो x by 5 plus y by 2.5 is equal to 1 और x plus y is equal to 4 this will be x by 4 plus y by 4 is equal to 1 draw that so maximum 5 we have to draw so here this is origin 1 2 3 4 5 x is equal to 5 y is equal to 2.5 1 2 2.5 draw the line x is equal to 4 y is equal to 4 this is that we got it okay now tell me the feasible region which is that so it is less than 5 obviously less than 5 means this side towards origin and this is also less than 4 that means towards origin we got the feasible region common region that is this one this point this point this point and this point we got it this is a this is b and this is c o a b and c tell me the values at every point x y and z at 0 0 0 0 a 4 0 4 0 8 b what is this value I think 1 3 this is x is equal to how much 3 and y is equal to 1 is satisfied no x is equal to 3 y ठीक clear ये है 0 and 2.5
तो अच्छा सॉरी, इसको 3 1 लिखो, तो हाउ मच इज कमिंग, 3 into 6 plus 4, C, C point is 0 and 2.5, how much is that, 10, and D is oh no, done. So 0, 8, 10 and 10, maximum value is 10. Now you see that at B and C, both places you are getting maximum value, and not only this, both places, on this line, BC line segment, anywhere you take a point you will get 10 value. Clear? इस लाइन पे आप कहीं पे भी ले लो, ये पॉइंट है, जैसे यही पॉइंट आप ले लो, दिस इज 2 and this is 1, put it here, x is equal to 1 and y is equal to 2, so 2 plus 8, 10, you are getting 10 here. Like here, this is x is equal to 2 and y is equal to 1.5, x is equal to 2, so 4 and 1.5 is 6, so 4 and 6, 10, you are also getting 10. So here also you are getting 10, at this point also you are getting 10, anywhere you see on this line segment you are getting 10, and that is the maximum value, and that lies in the feasible region. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हैं, इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड। अब जो भी वैल्यू इस लाइन पे सेलेक्ट करोगे दैट इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट होता आपका तो आप यहाँ इस लाइन पे जो भी वैल्यू वो आप सिलेक्ट कर लो, यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक्चुअली ये जो इसका फायदा कहाँ पे है, जैसे आप लेट सपोज अभी सिचुएशन जैसा है, पैंडेमिक सिचुएशन है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक फैक्ट्री है या फिर एक कंपनी है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, ओके, और उसे पता चला कि अगर मैं, है ना, दो तरह का सिलेंडर्स है उसके पास, एक एक्स टाइप का है, एक वाई टाइप का है, वो सोचता है कि मैं दोनों सिलेंडर कैसे कैसे प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो लेट सपोज दिस आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस 3 एंड दिस सिलेंडर bigger one I am going to produce, that is 1. So if he is producing 3 and 1, he is going to get maximum profit, right? No, sorry, suppose ये जो कंपनी है ना, ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन and he has to give it to let's suppose Maharashtra, one he has to give to Mumbai and he has to give to Delhi, right? अब ये डिसाइड करना है इसको कि मुंबई को कितना भेजना है और दिल्ली को कितना भेजना है। तो वो देख रहा है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर मैं 3 और 1 प्रोड्यूस 3 मुंबई को भेजूं और 1 दिल्ली को भेजूं तब भी मुझे 10 मिल रहा है। अगर मैं मुंबई को 0 भेजता हूं और दिल्ली को 2.5 भेजता हूं तब भी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। सो पॉइंट इज कि ही हैज टू सी कि कहां पे ज्यादा जरूरत है, ठीक है, वो वहां पे भेज देगा, क्योंकि प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जब आपके पास बहुत सारा अल्टरनेटिव्स हो, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, जब आपके पास अल्टरनेटिव्स हो तो आप जो जहां पे रिक्वायरमेंट्स है ना, वहां पे आप वो वाला ऑप्शन आप चूज करते हो। तो अगर आपके पास अनलिमिटेड अल्टरनेटिव्स है तो ऑब्वियसली आप वो चूज करोगे जहां पे जनरली आप अपना, ऑब्वियसली आपका तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट, बट यू विल सी कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जहाँ पे मतलब इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो यू विल बी डूइंग दैट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस अल्टरनेटिव ऑप्टिमा और दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि जहाँ पे आपको ऑब्वियसली अब आपके पास सी पॉइंट है कि आप तो मैक्स प्रॉफिट तो हो गया, अब आप you will now consider about the social scenario, you will see about the emergencies and all those things। पहले तो आप प्रॉफिट देख रहे थे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देखना होता है कि सोशल सिनेरियो एंड ऑल दोस थिंग्स, इमरजेंसी, वहाँ पे प्रॉफिट को नहीं देखा जाता है,
हो सकता है कि आपको यहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा हो लेकिन आपको प्रोड्यूस करना है लाइक 5 सॉरी, हो सकता है कि 5 सिलेंडर्स इसका और 10 सिलेंडर्स इसका प्रोड्यूस करना हो, तो उस समय हो सकता है आपको लॉस हो जाए। तो दैट इज अनदर केस। सो वी आर सीइंग अबाउट दिस वन कि इसका बेनिफिट क्या होता है जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और सारे ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट यू आर गेटिंग। सो उस समय आपको सोशल सर्विस करने का अच्छा चांस होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी विल सी दैट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। जो मैंने अभी बताया था ना प्रीवियस एग्जांपल, उसी तरह का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हम देख रहे हैं। सेम काइंड ऑफ, यहाँ पे देखो आप प्लस है साइन, तो कुछ तो पंगा होने वाला है। तो ऐसा करते हैं, ये कितना है 2 सॉरी x डिवाइडेड बाई 3/2 एंड y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 and this is by 1 and plus x by minus 1 is equal to, oh this is another question, sorry equation not 1। अब आप लोग इतना हो गए हो कि मतलब है ना, कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्म में लिखो और उसके बाद उसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे this is 3/2 and 3/2 means this side and 3 means this one। y is equal to x, that means obviously the line will be like this at 45 degree। y is equal to x line, this is at 45 degree or passing through origin। ओके, अब रीजन देखना है आपका पास, फिजिबल रीजन कौन सा है। तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 3, मतलब इस साइड अवे फ्रॉम ओरिजिन। दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब ये क्या है, कैसे पता चलेगा इस साइड या इस साइड। तो आप देख लो y is greater than x, so y is greater than, let's suppose this is the point, so this is y is how much, y is 2 and x is 1, that means this side, so we have to see this side it is not 1, so how yeah, so until unless this is 0 no, y by 0 it will be, so how, what is the meaning of this? Yeah. Okay, so we got the region. This is positive side, obviously. So we are getting the common region. This is our common region. And now this is again a unbounded region. And y can go at like it can go infinite, and even x can also go, because you see this line can go up to infinite. So x value also can be infinite। अब यहाँ पे आपको, आप सोच लो x भी इनफाइनाइट जा सकता है, y भी इनफाइनाइट जा सकता है, और आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देख रहे हो क्या, बोथ आर पॉजिटिव। सो x कैन गो, इफ x increases z increase, if y increases then also z will increase। clear? So now x, if x tends to infinity, z will tends to infinity, and if y tends to infinity, this also will tends to infinity। That means z का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलने वाला है, इंफिनिटी पे मिलने वाला है। यहाँ पे ना x का लिमिटेशन है ना y का लिमिटेशन है, there is no limitation of x and y, so you are going to get maximum at of z at infinity। So you just write down here, after the solution everything, you will be writing that the maximum value of x, sorry z, maximum value of z will be obtained
एट इंफिनिटी। मतलब यहाँ पे फायदा ही फायदा है, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी प्रोड्यूस करो, जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतना फायदा है। इट्स काइंड ऑफ लाइक एनी मेडिसिन इज देयर, कोई अभी एक मेडिसिन है, ठीक है, आप जितना मेडिसिन प्रोड्यूस करोगे आपका प्रॉफिट होगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सारा मेडिसिन क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाने वाला, राइट। सो नथिंग टू वरी, तो ये विन विन सिचुएशन, इसमें आपको सोचना ही नहीं है, एक्स एंड वाई का कोई लिमिटेशन ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट, okay, so last one is infeasible solution, थर्ड वन, ये प्रॉब्लम देखते हैं। So here we have x by 1 plus y by 1 is equal to 1, and this is x by minus 1 plus y by 3 is equal to 1. We got it. Now we are going to draw the line. Minus 1. Okay. X is equal to minus 1. That means this side. So here we have 0. X is equal to 1, y is equal to 1. Where is that? This is the line. X is equal to 1, y is equal to 1. X is equal to minus 1 and y is equal to 3. So this side we have to extend because we need only first quadrant. Now tell me the regions which is we have to consider. So x plus y less than 1, that means towards origin. Towards origin. Okay, first of all we have to take the positive side. So this is positive side and this is positive side. Okay, now this line minus 3x plus y is greater than 3. अब ये किस साइड होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा? How will you decide? This side, left side, या this side? Okay. How do you say that this side it will be? आप यहाँ पे, हाँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये इस साइड होगा, ठीक है। आप देखो, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर नहीं समझ में आता है ना, कभी कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कर लो। ग्रेटर देन बोल रहा है ना, मतलब कोई एक नंबर यहाँ पे रख करके देखो जो ग्रेटर देन 3 हो, 6 रखो, तो माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर? आप चेक करो कि ये किस साइड लाई करता है, दैट रीजन वी हैव टू सिलेक्ट। सो दैट विल बी -2, y by 6 is equal to 1, y is equal to 6 कहाँ पे होगा, somewhere here, okay, and x is equal to -2 somewhere here, this one. This side the line is coming, the line is coming this side somewhere. Clear? That means we have to consider the region this side. अच्छा, इस साइड तो हमें चाहिए नहीं, पॉजिटिव साइड, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू कंसीडर दिस। अब बताओ विच इज द फिजिबल रीजन, विच इज द फिजिबल रीजन। ये लाइन और ये पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स ये वाला रीजन और इसका ये वाला रीजन, दोनों में कोई कॉमन रीजन है ही नहीं, ठीक है। बोथ कंस्ट्रेंट्स आर नॉट गिविंग यू एनी कॉमन रीजन, मतलब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। कैन राइट दैट हियर, दैट बोथ या फिर ऑल constraints do not provide any common feasible region.
hence the problem has no solution. This is known as infeasible linear programming problem. मतलब कोई feasible solution नहीं और non existing solution. Clear? So this is another problem. तो हाँ, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप जो जो क्राइटेरिया देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि अच्छा ये हमारा मतलब रिसोर्सेस, ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज, लेट सपोज जो वैक्सीन अभी तैयार हो रहा है तो उसका रिसोर्सेज अमेरिका से लाना है, अमेरिका दे ही नहीं रहा है। फिर ये आपका हो गया लेट सपोज द नंबर ऑफ डिमांड्स। अब दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं, जितना डिमांड है और रिसोर्सेज मिल नहीं रहा है, सो देयर इज नो कॉमन फिजिबल रीजन, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। फिर आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा, है ना। अब जो भी, अब दिस इज ए इमरजेंसी सिचुएशन, अब आपका इमरजेंसी हो गया, अब आप जो भी फैसला लोगे, मतलब अब आपको देखना है कि किस तरह से हम विदाउट रिसोर्सेस आप काम करो, समझ में आ गया? तो यही है, तो नो सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे कोई फायदा और घाटा देख नहीं सकते बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज। सो मतलब इस रिसोर्स के बिना ही आपको काम करना होगा। या तो ये वाला कंस्ट्रेंट को हटा दो, ठीक है, हो सकता है बहुत सारा कंस्ट्रेंट हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो 2 कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, हो सकता है एक तीसरा भी लाइन हो ऐसा, एंड दैट इज टेलिंग समथिंग लाइक ओके, दैट इज गिविंग दिस काइंड ऑफ रीजन। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन हो रहा है, राइट, 2 constraints is giving you common, but the third one is not giving any common. Still you are not going to get any feasible solution. So what you have to do, you have to reject the uh, the constraint which is not giving you common region. तो आपको ये मतलब इसको कंसिडर ही नहीं करना। मतलब आपको अगर जैसे मैंने बोला ना, रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है, तो वो वाला पार्ट आपको हटा देना है। बाकी के कंस्ट्रेंट्स को आप चेक करके देख लो कि क्या मैं इतना वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता हूँ विदाउट दैट रिसोर्सेज। इफ इट इज पॉसिबल देन डू इट, सो लाइक दैट। तो वो वाला कंस्ट्रेंट को आपको रिजेक्ट करना, कंस्ट्रेंट इज नॉट गिविंग यू एनी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास, सो वी हैव कंप्लीटेड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। इसमें मैंने सारे केसेस बता दिए। अगर सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशंस हो जाए तो किस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन होगा, किस कंडीशन में एक था ना, क्या था, हाँ, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, मतलब जहां पे आपको कोई ये नहीं है, लिमिटेशन ही नहीं है, आप जितना प्रोड्यूस करो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट। ठीक है, मतलब उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो आप इनफाइनाइट प्रोडक्शन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थर्ड केस वाज, दीज आर अनकॉमन केसेस, मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन कभी कभी ये इस तरह के केसेस आ जाते हैं, इनफिजिबल और नॉन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिलेगा, फिजिबल रीजन नहीं मिलने वाला है, सो दीज आर एक्सेप्शनल। ठीक है, तो मैंने हर एक तरह के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब दिस इज द बेसिस, एक्चुअली दिस इज द बेसिस फॉर द, अभी तो आप देखो एक्चुअली ग्राफिकल सॉल्यूशन इज ओनली पॉसिबल फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके, नॉट एलपीपी, it can be possible for NLPP, non-linear programming also. मैं पूछ रहा हूँ कि graphical solution is only possible for which kind of LPP or which kind of LPP, which kind of LPP?
फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था इस पे, ग्राफिकल सॉल्यूशन इज ओनली पॉसिबल फॉर, आपने देखा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टू वेरिएबल LPP. The problem which is having only two variables, then you can use graphical solution. लेकिन रियल में तो दो वेरिएबल नहीं होता, हो सकता है आपको 5 वेरिएबल्स हो जाए, 10 वेरिएबल्स हो जाए या 20 वेरिएबल्स हो जाए, पॉसिबल। तो उस तरह के प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल सॉल्यूशन में से नहीं कर सकते, बिकॉज आपने मैंने बताया था कि आप ये ग्राफ शीट पे एक से ड्रॉ करोगे एक बाई, अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 वेरिएबल्स हो जाए एक्स बाई जेड, जेड कहाँ ड्रॉ करोगे इसमें? इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द जेड? नॉट पॉसिबल, नो। So for that you require 3D, ग्राफ, 3D ग्राफ, फिर उसमें इमेजिन करना ही आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर another method which is known as simplex method। तो हम लोग simplex method पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास हम लोग, ओके। अच्छा, आप लोग का जो टेस्ट है फॉर CA1 that will be by I think Friday or Saturday, so that will be informed to you। चलो ठीक, थैंक यू वेरी मच।